Hello, dear students. So, your Professor Rana is here. Now, I am making a series of videos which will help you to find the exact answers in very short process, very short time, and you will feel it very good and you will excel in exam by applying these methods, whether they are in physics or chemistry or biology or other subjects. So हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं how to solve your multiple choice questions easily and quickly applying certain shortcuts. So enjoy them. Thank you. Hello students. So I'm going to discuss here physics multiple choice questions which probably come in NEET exam, JEE exam, NDA exam and CUET, and they may be asked in other competitive exams like TGT, PGT and SSSB, State Service Selection Boards also. So here we start with the questions, especially for NEET, JEE and NDA and CUET. So our first question is, a gun of mass 10 kilogram fires 4 bullets per second. The mass of each bullet is 20 gram and the velocity of the bullet when it leaves the gun is 300 meter per second. The force required to hold the gun while firing is. So questions क्या है बेटा लोग? A gun of mass कितना है गन का? 10 किलोग्राम की गन है and it fires कितने? 4 bullets per second. The mass of each bullet कितना है? 20 ग्राम. सो आपकी फोर्स न्यूटन में दी है. सो बी केयरफुल कि 20 ग्राम को आपने चेंज करना है. 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. तो ये बात तो पहले समझ लीजिए. सेकेंड थिंग, एंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट लीव्स द गन इज 300 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास बेटा फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन क्या होगी? देखिए, फोर्स required to hold the gun is equal to rate of change of momentum of the bullet in forward direction. वही होगी ना, और क्या हो सकती है इसके अलावा? जितना उसका मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स लगेगी, झटका लगेगा, सो उसके अकॉर्डिंग होगा. F इज इक्वल टू NMV. FM में तो आपने देखा ही है. अब N क्या है? N है यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी F इक्वल्स टू नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हैं गिवन क्वेश्चन में? दे आर 4. सो वी विल टेक 4 इंटू मास कितना लिया हमने? 20 इंटू 10⁻³ मैंने पहले ही कहा था कन्वर्ट कीजिए, इंटू भाई स्पीड क्या है? 300 मीटर पर सेकेंड. सो 300 मीटर पर सेकेंड. यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? न्यूटन. एंड इट विल बी टोटली अगर आप करो तो जीरो जितने आ रहे हो -3 से कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बी 24 न्यूटन इज योर आंसर, ऑप्शन सी. राइट? ओके, नाउ वी स्टार्ट विद second question. So our second question, dear students, is a force F, vector F is equal to 2i cap minus 3j cap plus 7k, okay, in bracket, and acts on a particle which undergoes a displacement r vector equals to 7i cap plus 3j cap minus 2k cap. Okay, so displacement is in meter and force is in Newton. That's why it is written capital N, and here it is written in case of displacement small m. Calculate the work done by the force. So student, it is very easy question. कोई इसमें आपने डाउट नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है भाई. अब वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन, यू पीपल वेरी वेल नो कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. राइट स्टूडेंट्स? सो हम यहाँ क्या कर देंगे? हम यहाँ करेंगे वेक्टर F इंटू वेक्टर R.
सो हेयर इट विल बी कितना गिवन है, वेक्टर एफ कितना है बेटा जी, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप multiplied by, now you have to multiply this with displacement, that is 7i cap plus 3j cap minus 2k cap, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, ओके 2 7 ज़ा 14 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस माइनस माइनस, so again it will be minus 7 2 ज़ा 14, so it will be कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस 23, 14 माइनस 23, सो आंसर विल बी इन माइनस 9 जूल, मीन्स अब देखिए क्वेश्चंस में गिवन है, यस इट इज़ द बी ऑप्शन। सो इट इज़ वेरी इजी, लगा क्या, सिर्फ ओनली वन फार्मूला इज यूज्ड, वर्क डन W इज इक्वल टू FS, आपने पढ़ा ये यहाँ FR है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने R लिया हुआ है, nothing else. So it's very easy, so student you can do it easily, I think. Now we will try to understand question 3, and question 3 is what, when, dear students ध्यान से देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, when the kind, I have taken different types of questions, जैसे कि आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, सो 10 का पैच बना के मैं मॉड्यूल निकाल रहा हूँ अपने वीडियो के, तो 10 क्वेश्चन होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जब सिमिलर आएंगे तो हम सिमिलर वाले करेंगे टॉपिक वाइज। सो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव विल, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज और व्हाट विल हैपन। सो स्टूडेंट्स नाउ सी, हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। इफ़ वी नो इट वेल तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यू नो वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p, या h अपॉन, ठीक है ये आपको पता ही है। सो h अपॉन p, p इज व्हाट, h अपॉन रूट 2m e, और डायरेक्टली व्हाट वी कैन से लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट e। अब डायरेक्टली ले लीजिए, मीन्स वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑपोजिट है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज देन वेवलेंथ विल डिक्रीज। सो यहाँ क्या पूछा है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज देन इट विल क्या, वेवलेंथ विल डिक्रीज। सो ऑप्शन इज बी आंसर, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज वेरी इजी, you can do it easily. Next, question number 4 is here with us. It is a figure based question. So look at this question. In a pressure volume diagram shown in figure, ABC is a semicircle. This ABC is a semicircle. The work done in atom and liter in the process ABC is, प्रेशर को हमने एटम लिया है और वॉल्यूम को हमने लीटर में कैलकुलेट किया है, एंड योर ऑप्शंस आर दीज। अब हमने सोचना है कि ये भाई करना कैसे है, इसमें आपने घबराना नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आपको क्या पूछा है, वर्क डन। सो स्टूडेंट्स वर्क डन इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है सेमी सर्कल के लिए लगा, पाई R1 R2 हो जाएगा यहाँ अपॉन 2। अब रेडियस दोनों केस में क्या है 1, so it will be pi into 1 upon 2, that is pi upon 2, and unit क्या लेंगे एटम लीटर। so pi upon 2 कहाँ है, ऑप्शन B is the answer. so it's very easy, ऐसे क्वेश्चंस में आपने घबराना नहीं है, राइट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. A body of mass 3 kg is under a force which causes a displacement in it, is given by S equals to T cube upon 3 in meter. Find the work done by the force in first 2 seconds. फर्स्ट 2 seconds का आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब इसमें करना क्या है, देखिए गिवन क्या है बेटा आपको, S equals to T cube upon 3,
तो डी एस क्या होता है, यू नो वेरी वेल, टी स्क्वेयर डी टी, यही होता है। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी आपको। देन अच्छा, अब आपको क्या बोला है, यहाँ होना चाहिए, यू शुड नो ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड टी क्यू अपॉन 3, एंड इट इज़, आपको किसके साथ कैलकुलेट करनी है, किस परस्पेक्टिव में, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, सो इट विल बी 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये तो हो गया बात रिलेटेड टू फॉर्मूला। वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ले लेंगे 0 to 2, ओके, F इंटू डी एस, दैट इज F क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, सो एम ए की वैल्यू डाल लीजिए इंटू डी एस। देन हेयर वी विल हैव, क्या हो जाएगा, इंटेग्रल 0 to 2 3 इंटू 2t, वैल्यू डाल दीजिए इंटू टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये आपके सामने बन जाएगा 6t³ dt, और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इट विल बी 3/2t रेज टू पावर 4, 0 to 2 हमने लिमिट ली है उसकी। इट विल बिकम, कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 24 जूल के बराबर, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको मैथमेटिकली। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि ये कैसे करना है, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is what? A small satellite is revolving near Earth's surface. Satellite जो है वो अर्थ के सरफेस के पास रिवॉल्व कर रहा है। Its orbital velocity will be 8, 11.24, क्या हो जाएगी भाई? इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी v ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन r, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ स्मॉल g r। और अगर सारी वैल्यूज़ आप डाल लें, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ है आपको पता है 6400 किलोमीटर, सो अगर सारी वैल्यू अब आप डाल लेते हैं, g की आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड, सो आवर आंसर विल बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इट्स वेरी ईजी, डोंट बी कन्फ्यूज, और इसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, एंड दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज एन अल्फा पार्टिकल of 5 mega electron volt energy strikes with a nucleus of uranium stationary at a scattering angle of 180 degree. The nearest distance up to which alpha particle reaches the nucleus will be of the order of 1 angstrom, 10 to power minus 10 centimeter, 10 to power minus 12 centimeter, 10 to power minus 15 centimeter. तो वो क्या होगा, वो हमने अब कैलकुलेट करना है। सो अब अगर हम इसको करते हैं, आपको नियर अबाउट आंसर दिया है उन्होंने, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। सो आपको पता होना चाहिए एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको दिया है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेना है, ठीक है, और मेगा है तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा, ये मेगा से बना है। आप ये याद रखिए, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE इंटू 2E अपॉन R। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, राइट। एंड फॉर यूरेनियम, किसके लिए बताया है आपको, फॉर यूरेनियम, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एवरीबडी नो 92। सो आर की वैल्यू नियर अबाउट 10 टू पावर माइनस 12 सेंटीमीटर आएगी व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आंसर सी इज करेक्ट। सो यू कैन डू इट दिस वे, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, हिम्मत रखनी है भाई, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ।
तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए. नाउ वी कम टू आवर 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन इज अ प्रेसबायोपिक पेशेंट, जिसको कि प्रेसबायोपिया है, has near point as 30 centimeter and far point as 40 centimeter. The dioptric power of the corrective lens for seeing distant objects is क्या होगी भाई, 40 डायोप्टर या 4 डायोप्टर या -2.5 डायोप्टर या 0.25 डायोप्टर. सो इस केस में आपने समझना क्या है कि इन दिस केस फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स द फार पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर. उन्होंने बताया ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए फार पॉइंट हो गया 40 सेंटीमीटर. तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है, यही पूछा है, द डायोप्ट्रिक पावर फॉर द करेक्टिव लेंस. तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -d. -d क्यों लिया, इट इज डिस्टेंस फॉर फार पॉइंट, राइट. सो स्टूडेंट it is equal to -40 centimeters. So you have to take care of all these things. Then you can calculate it easily. So we will apply this formula of power now. So it will be 100 upon f centimeter. And that is 100 upon -40. If you calculate it, it is -2.5 d. So it is the answer. C is the option. So don't worry. They are very easy. They are very easy questions to solve. The only thing is आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, आस्क्ड क्या है, एंड यू हैव टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द थिंग्स एंड यू विल फाइंड द आंसर. तो ये आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y इक्वल्स टू 2 sin pi in bracket 0.5x to 200t, where x and y are expressed in centimeter and t time in seconds. The wave velocity is, so you have to tell the wave velocity here. So wave velocity is equal to omega upon k. Omega in terms of coefficient of t, right, and students k coefficient of x, right. Then we will have 200 pi upon 0.5 pi, that is equal to क्या हो जाएगा, 2000 upon 5, and solve it, it will be 400 centimeter per second. So this is very simple answer, very easy to find out. So don't worry. अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, you become nervous नहीं होना है. Patiently use your mind, recall the concept, recall the formula, and then apply the formula. तीनों स्टेप करने हैं, 4 स्टेप करने हैं. फर्स्ट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन, सेकेंड इज रिकॉल द कंसेप्ट, थर्ड इज रिकॉल द फॉर्मूला, एंड फोर्थ इज अप्लाई द फॉर्मूला, एंड एट लास्ट 5th पॉइंट इज get the answer and then tick your option as the correct one. Next, last question number 10 is the work per unit volume to stretch the length by 1% of the wire with cross sectional area 1 millimeter square will be Young's modulus है. ये y equals to 9 into 10 to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यंग्स मॉडुलस लिया गया है, राइट. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, वर्क डन मीन्स इक्वल टू एनर्जी, दैट इज यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. और स्ट्रेन क्या है यहाँ, स्ट्रेन है बेटा यहाँ पे, स्ट्रेन हेयर इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/100. आपको दिया है 1%, दैट इज 1/100. सो वी विल सॉल्व दिस फॉर्मूला नाउ. इट विल बी 1/2 इंटू 9 इंटू 10 to power 11, right, into 1/100 the square. So now there we will get the answer as 4.5 into 10 to power 7 joule. So answer B is the correct answer. So they are very easy to solve. You must have patience and apply all the 5 steps. That is, first you understand the question, second is recall the concept, third is apply the concept, fourth is
calculate, and fifth get the correct answer. So they are very easy. I think you have enjoyed this session. Thank you.